Fine. So now we come to the next important part of the chapter. It's about spontaneous or irreversible processes. Now, first of all, tell me, what do you understand by the word spontaneous? Instant. Instant. And with regards to chemical reaction, it is something which is taking place on its own. Instantaneously या spontaneously होना मतलब खुद ब खुद होना. And when I say taking place on its own, matlab there is no external force required for that process to take place. So such processes which are taking place on its own without any external force are called spontaneous processes, and such type of spontaneous processes are always irreversible. जो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं वो हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं. In fact, all the natural processes taking place around us are always spontaneous and irreversible. तो चाहे आप natural process बोलो, spontaneous बोलो, irreversible बोलो, it's one and the same. ठीक है? Example, let's see. तो natural processes की बात करें तो we know that water always flows from higher to lower level. It never ever flows from lower to higher. ठीक है? और रीजन क्या है? Because at higher level the potential energy is high, lower level पे आने पे potential energy कम हो जाती है. मतलब spontaneity is actually you can say related to stability. Lower energy पे ज्यादा stability मिलती है, इसीलिए हमेशा spontaneous process unidirectional होता है और irreversible होता है. ठीक है? So when I say spontaneous, matlab it is taking place on its own without the help of any external agency. तो अगर मैं इस डैम में लेट्स से एक मोटर लगा देता हूं और उस मोटर का काम है पानी को ऊपर चढ़ाना, तो इस केस में प्रोसेस रिवर्स हो जाता है. लेकिन there is this external agency which is the motor which is used for that reverse process. नेचुरली तो वाटर हमेशा हायर से लोअर लेवल ही जाएगा. ठीक है? सिमिलरली हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्डर बॉडी. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हॉट कॉफी में शुगर का डिसॉल्व होना वो भी अपने आप होता है बिकॉज इट यूजेस अप द हीट अवेलेबल. And spreading of fragrance when a bottle of perfume is opened, which is nothing but the dispersion. So these are all the spontaneous processes, natural processes, which are taking place on its own and are irreversible. ठीक है? Important features क्या है? Spontaneous process occurs only in one direction, unidirectional होते हैं, and they cannot spontaneously occur in opposite direction. The processes can be very fast or very slow, and they will proceed till the equilibrium is reached, rather till another equilibrium point is reached. Okay, now if I talk about this spontaneous processes, so thermodynamically, to gauge whether a given reaction is spontaneous or not, we have to analyze it with respect to the heat content of the system or of the chemical reaction. Now, what is heat content of the chemical reaction called? Enthalpy. Delta H. Jay, what you said? Nothing, sorry. Heat content of a system or heat content of a chemical reaction is determined using enthalpy, because enthalpy gives you two information. One is about internal energy and the other is PV type of work which is done between the system and the surrounding. क्योंकि enthalpy is equal to U plus PV. ठीक है? तो स्पॉन्टेनिटी के लिए सबसे पहले enthalpy का पैरामीटर सामने आया. Spontaneous process and enthalpy, how they are related, let's understand. Now, for a chemical reaction, when we talk about enthalpy, it can either be negative or positive, right? Indicating that the process is exothermic or endothermic. Exo or endo. Now, when I say a reaction is exothermic, matlab the heat is released, heat is evolved. ठीक है? So in that case, if I compare the enthalpy of the products
with regards to enthalpy of the reactants. What is a comparison? If the heat is liberated in a chemical reaction, lesser. HP would be lesser than HR. Matlab, enthalpy content of the product will be lesser. Now, if the energy is lesser, meaning the stability is higher, matlab here I can say the products are more stable than the reactants. Do you agree? And if the products are more stable than the reactants, then for a reaction of reactant converted to products, अगर product की stability ज़्यादा है, तो reaction forward में move करेगा और ऐसे reaction spontaneously हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? Everyone. मतलब, if I compare the spontaneity with regards to enthalpy, so I can conclude that a reaction which has a negative delta H would always be spontaneous. On the other hand, जो reaction endothermic होंगे, वो spontaneously होंगे कि नहीं होंगे? हाँ? नहीं होंगे. नहीं होंगे. So अगर हम यहाँ पर वापस देखें तो पॉजिटिव डेल्टा एच के लिए वी नो इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो चुका है. एब्जॉर्ब हो चुका है मतलब HP ग्रेटर होगा HR से. मतलब द प्रोडक्ट्स नाउ वुड बी लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट्स. बराबर. अगर प्रोडक्ट लेस स्टेबल है रिएक्टेंट से, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाले रिएक्शन में एक्चुअली फीजिबिलिटी नहीं रहेगी and kind of it will be a reversible process. Getting it? Yes, sir. So now let's see the example. If I talk about acid-base neutralization, whenever an acid is neutralized with a base, what is the delta H value for a strong acid and a strong base? What is the standard enthalpy of neutralization? -13.7. You have to speak with the units because Calories. दो values है. Calories नहीं है. It's kilocalories. -13.7 बहुत बड़ा वैल्यू होता है एंथैल्पीज का, याद रखना. ये हमेशा या तो किलो जूल्स में होगा या किलो कैलोरीज में होगा. 13.7 calories nothing, right? So we know that when an acid and a base is neutralized, it forms salt and water, and it's a spontaneous process which is always exothermic, liberating -57.3 kilojoules per gram equivalent of energy. तो ये वाला reaction spontaneous है. And let's compare one more example. Melting of ice above 0 degrees Celsius. Is this endo or exo? Endo. Obviously, melt होने के लिए heat लगेगी, मतलब it's an endothermic process. अच्छा, now tell me, is melting of ice a spontaneous process? Can it take place on its own? If you just keep ice in the surroundings for some time, does it melt on its own, or you have to supply something? Supply. Supply करना पड़ता है. Are you providing some external heat, or it is just spontaneously melting on its own? बर्फ पिघलता नहीं है क्या अपने आप? होता है ना. If you just keep ice for some time outside, it will just take the energy from the surroundings and it will absorb the heat and just melt it. हाँ कि नहीं? Do you agree? Yes, sir. So melting of ice above 0 degree, above 0 degree Celsius, मतलब obviously it is at a higher temperature as compared to its melting वाला temperature, है ना? Above 0 लिखा है. तो मैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं. Above 0 degree Celsius अगर एनर्जी अवेलेबल है तो वो मेल्ट हो जाएगा. डू यू अग्री एवरीवन? Yes, sir. Ice above 0 degree Celsius converts into liquid water, and for this the delta H is positive 6 kilojoule per mole. बराबर.
अब हमने डेल्टा एच के हिसाब से बोला था कि जो प्रोसेसेस एक्सो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और जो एंडो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, लेकिन देयर आर मेनी प्रोसेसेस which are endothermic but still spontaneous. There are many processes which are endothermic but still spontaneous. एक और एग्जांपल देता हूं. If I talk about N2 plus O2, nitrogen का burning, which is giving you nitric oxide, all in the gaseous state. Tell me, for this reaction, what is the delta H? Negative or positive? Positive. It is positive. एक्चुअली ये कंबशन रिएक्शन है, मतलब पहला थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आएगा कंबशन तो एक्सोथर्मिक होता है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए. बट इस केस में वी आर डीलिंग विथ द स्पीशीज in which the atoms are joined by multiple bonds in both the reactants. मतलब इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो ज्यादा है as compared to what energy is liberated. So एनर्जी लिबरेट होता है लेकिन इसको सप्लाई किया हुआ एनर्जी हमेशा एक्सीड करता है, तो ओवरऑल जो डेल्टा एच है ना दैट इज पॉजिटिव. गेटिंग इट? मतलब कंक्लूजन ये है कि ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर एक्सोथर्मिक आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, बट ऐसा नहीं है कि जो रिएक्शंस एंडोथर्मिक है वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस है. देयर आर सम रिएक्शन व्हिच being endothermic are also spontaneous. मतलब spontaneity के लिए only delta H cannot be considered as a parameter to decide. Spontaneity के लिए we can't just take the enthalpy change or the delta H as a single parameter. ठीक है, इसीलिए अब spontaneity decide करने के लिए there is one more parameter which was introduced. तो यहाँ एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ न्यू थर्मोडायनामिक पैरामीटर एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड. एंथैल्पी से हम स्पॉन्टेनिटी को सिंगल पैरामीटर के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वी रिक्वायर्ड वन मोर पैरामीटर एंड फॉर दैट द एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड. Now, what is entropy? In simple language, entropy is a measure of disorderedness of the system. Measure of disorderedness of the system. या randomness of the system. एक simple example देता हूँ. मान लो you are going for the examination. So obviously in any examination hall, you will be allotted some specific seats as per your roll numbers or whatever hall ticket number. ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्वियसली आपको जो अलॉट किया हुआ सीट्स है उसी पे जाके बैठोगे कि रैंडमली कहीं पे बैठ जाओगे? जो अलॉट किया है उसी पे बैठोगे, बराबर. मतलब इन दैट केस इफ यू सी देयर इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल. ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. बट एक बार एग्जाम खत्म हो गया, पेपर्स सबमिट कर दिया, उसके बाद विल यू बी सीटेड एट दैट प्लेस ओनली? नहीं. आप इमीडिएटली उठ के फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना चालू कर, अरे मैंने ए मार्क किया, तूने बी मार्क किया, इसने क्या मार्क किया, उसने क्या मार्क किया, ये करेक्ट है कि नहीं, ये गलत है कि क्या है ना. तो ये सारा ऑब्वियसली ये डिस्कशन चालू हो जाएगा. नाउ द एंटायर हॉल will become disordered with respect to its arrangement. Do you agree? Yes, sir. Yes. So entropy when there is more disorderedness is higher. मतलब जब randomly arrangement हो जाएगा तो entropy high होगा, और जब एकदम proper arrangement होगा तो entropy lesser होगा. तो अगर मैं physical states की बात करूं, from solid to liquid to gas, the entropy goes on increasing. The entropy goes on increasing. Do you agree with this? Yes, sir. Now ये entropy का पैरामीटर आया ही क्यों, वो समझते हैं. If I talk about the universe,
There are many natural processes which are taking place spontaneously. अपने यूनिवर्स में, अपने आसपास बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है which are taking place on its own. उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, बराबर. जैसे ये सारे प्रोसेसेस जो मैंने बात की है, ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बराबर. सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो द डिसऑर्डर्डनेस इज गोइंग ऑन. Look at the examples and tell me the disorderedness is going on, increasing or decreasing. Acha, just take the example of spreading of fragrance. When a bottle of perfume is opened, आपको फ्रेग्रेंस क्यों आता है? इंक्रीजिंग. बिकॉज जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और जितने अवेलेबल स्पेस है उसमें डिस्पर्स हो रहा है. मतलब कैन आई से द गैस मॉलिक्यूल्स आर नाउ रैंडमली मूविंग. परफ्यूम की बोतल में वो पैक था, अब जैसे ही आपने उसको क्लिक किया, प्रेस किया, तो ऑब्वियसली वहां पर सारे गैस मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स हो रहे हैं. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. तो कोई भी नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखोगे उसमें डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ता है. डू यू अग्री? Yes, sir. मतलब इन द यूनिवर्स द एंट्रोपी ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू. यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ते जाता है. इट्स एवर इंक्रीजिंग एंड इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग 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 एंड इट ऑलवेज रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू. अब आपके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से ये बोला था कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, कंजर्व्ड रहता है. और एंट्रोपी जो है वो मैं बोल रहा हूं इट्स एवर इंक्रीजिंग फॉर द यूनिवर्स. तो एनर्जी अलग होता है, एंट्रोपी अलग होता है. एनर्जी एंड एंट्रोपी अलग होता है. और ये समझने के लिए I'll give you a very simple example. Wow. तो एग्जाम्पल ये है, लेट्स कंसिडर अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर. एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर कंसिडर किया है. एडायाबेटिक वॉल्स है, ठीक है, और इसमें मैंने एक हॉट सब्सटेंस को रख दिया, बराबर. अब ये हॉट सब्सटेंस क्या करेगा? स्पॉन्टेनियसली अपने आप अपनी हीट को स्प्रेड आउट करेगा कि नहीं अवेलेबल वॉल्यूम में? Yes, sir. ओके. अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए व्हाट इज Q? सिस्टम के लिए Q क्या है? मतलब इट इज जीरो और नॉन जीरो ऐसा? Zero. इंसुलेटेड फ्लास्क या इंसुलेटेड कंटेनर बोला ना, एडायाबेटिक वॉल्स है, तो हीट बाहर तो नहीं जा सकता है. अब हीट सिस्टम के अंदर ही रह रहा है, मतलब Q तो जीरो है. डू यू अग्री? Yes, sir. हाँ. दूसरा, इफ आई आस्क यू अबाउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, Increased. इंक्रीज्ड, बिकॉज जो हॉट बॉडी है उसने अपना एनर्जी लिबरेट किया. बट ये जो हॉट बॉडी का एनर्जी था वो तो सिस्टम के अंदर कंजर्व्ड ही था ना. हैज इट इंक्रीज थ्रू द एक्सटर्नल सोर्सेस? क्या मैंने हीट दिया, क्या उसने वर्क किया? हॉट बॉडी में जो हीट था वो खाली फ्लो हुआ है. तो कैन यू से द इंटरनल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड? इज दैट करेक्ट? थिंक अबाउट इट. सोचो सोचो. मैंने एक गर्म ऑब्जेक्ट को एक थर्मली इंसुलेटेड फ्लास्क में रखा है, ठीक है. अब थर्मली इंसुलेटेड मतलब हीट तो ना तो बाहर जा सकता है ना तो बाहर से अंदर आ सकता है. तो जो भी हॉट बॉडी का हीट था वो जस्ट फ्लो हो रहा है
into the available space. Internal energy मतलब क्या? The energy content of the system. Has it changed because of that flow of the heat? No. आ रहा है समझ में सबको? ये काफी इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट. जो हॉट बॉडी फ्लास्क के अंदर था वो खाली अपना हीट डिस्पर्स कर रहा है. Yes or no, everyone? Yes, sir. So, but won't the hot body raise the temperature? So you will increase it. हाँ. अब यहाँ पर एडायबिटिक सिस्टम में Q0 तो होता है, ठीक है. अब डेल्टा U अगर हम टेम्परेचर से रिलेट करें तो ओवरऑल यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. वो नॉर्मली कोई केमिकल प्रोसेस में होगा. मतलब अगर मैंने कहीं पे केमिकल रिएक्शन किया तो रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो हीट लिबरेट हुआ वहां से. सो दैट इज अ प्रोसेस व्हिच हैज हैपेंड. यहाँ पर एज सच कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है. डू यू गेट दैट? What you're saying is correct. और ये हमने देखा भी है कि ए डायबिटिक में एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर घटता है. Definitely that is correct, but there is no process or conversion which is happening. It's just the hot body which was placed and it is giving away the heat. Understood? Yes, sir. So very valid question, but यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है इसलिए डेल्टा U 0 होगा. And since delta U equal to Q plus W, W भी 0 होगा. Understood? Yes, sir. मतलब इस पूरे insulated system में there is no energy change which has taken place. There is no energy change which has taken place. But अगर मैं disorderedness की बात करूं, molecules के disorderedness की, उसका energy से कोई लेना देना नहीं है. उसका सिर्फ randomness से लेना देना है, disorderedness से लेना देना है. ठीक है. तो अब यहाँ पर जैसे ये हीट फ्लो होगा, कैन आई से इट इज गेटिंग मोर डिस्पर्स्ड? यस और नो? Yes, sir. मतलब यहाँ पर जो डेल्टा एस है इनिशियली ऑर्डर्ड फॉर्म में था, बाद में डिसऑर्डर्ड हो रहा है, यानी वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है. मतलब दो द एनर्जी कंटेंट इज 0 और द एनर्जी कंटेंट इज कांस्टेंट, the entropy for any spontaneous process will always go on increasing. Listen to this statement, I am repeating again. Though the energy content is not changing, it is remaining constant, still the entropy for any natural process will always go on increasing. इसलिए यूनिवर्स में चाहे अपना एनर्जी कांस्टेंट हो, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो हमेशा डिसऑर्डर्डनेस को बढ़ाता है. एंड दिस इज एक्चुअली वन मोर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, which simply says that the entropy of the universe always goes on increasing and reaches to its max value. Have you understood that? Yes, sir. मैंने यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं करवाया है, मैंने सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस रख दिया जो स्पॉन्टेनियसली अपनी हीट को फ्लो करवाएगा, बस. I am not talking about chemical reaction. I am not talking about any conversion over here. That's why Q, delta U and W remain 0. There's no energy change, but still the entropy increases. So the bottom line is, for any spontaneous process, if the energy content is constant, it is not changing, still the entropy for that process will always go on increasing. So that's where the importance of entropy comes into picture, क्योंकि entropy का energy के साथ कोई लेना देना नहीं है. Is that clear to everyone? Yes, sir. Here we are with entropy and entropy change. So solids में we know that the constituent particles are orderly arranged. That is why the entropy is least in the solid state. Liquids में molecules दूर जाते हैं और gases में और भी दूर जाते हैं. मतलब gas has the maximum randomness, hence it has the maximum entropy among the physical states. Right? अब
अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया तो उसका एंट्रोपी कैसे देखने का, जैसे PCl5 ब्रेक डाउन करके PCl3 और Cl2 देता है. Now all the substances are in the gaseous state. So if I talk about 1 mole of PCl5, it is giving 1 mole PCl3 and 1 mole Cl2. अगर आपको एंट्रोपी समझा है तो बताओ इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी बढ़ा या घटा? बढ़ा, बिकॉज पहले 1 मोल का गैसियस सब्सटेंस था, अब डिकम्पोज होकर 2 मोल्स बन गया, पार्टिकल्स बढ़ गए तो रैंडमनेस भी बढ़ गया. तो पॉइंट नंबर 1, द डेल्टा एस और द एंट्रोपी इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या सिंपली नंबर ऑफ मोल्स. जितने ज्यादा मोल्स बढ़ेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका एंट्रोपी इंक्रीज होगा. मतलब फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0. अच्छा, व्हाट अबाउट डेल्टा एच? इज इट एंडो और एक्सो? एंडो. ऑफ कोर्स, क्योंकि PCl5 डीकंपोज हो रहा है, तोड़ने के लिए फोड़ने के लिए एनर्जी लगता है, इसलिए इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच कैन बी डिफाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है. दूसरा, एंट्रोपी जो है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. अगर मैं कोई सॉलिड सिस्टम में हीट को दे देता हूं तो व्हाट विल हैपन? It will melt and the disorderedness will increase. So can I say the entropy is dependent on, directly proportional to the heat? जितनी ज्यादा हीट अवेलेबल रहेगी उतना डिसऑर्डर्डनेस ज्यादा होगा. लॉजिकल है. अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, और ये समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. मान लो मेरे पास 2 कंटेनर्स है जिसमें वाटर इज प्लेस्ड. Now this particular water is already at 80 degrees Celsius and this water in the another container is at 25 degrees Celsius. Now I am supplying same amount of heat to both the containers. 100 जूल का एनर्जी मैंने दोनों को दिया. तो मुझे बताओ टेम्परेचर राइज ज्यादा किस में होगा? Will be equal. It will be equal because we are supplying same amount of heat. बराबर. अब अगर मैं डिसऑर्डर्डनेस की बात करूं तो डिसऑर्डर्डनेस ज्यादा किस में होगा और विल इट बी रिमेनिंग द सेम? In the vessel with more temperature. Sorry? It will be more in the vessel with more temperature. It will be more in the vessel with more temperature. Okay, fine. So एक और एग्जांपल देता हूं, then again we'll come back to this. So मान लो there are 2 situations I am giving as an example. एक तो अपना वेजिटेबल मार्केट और दूसरा लाइब्रेरी. What is the type of environment in both the cases? Vegetable market में the environment will be highly chaotic, है ना, because जो वेजिटेबल लेने वाले हैं और वेजिटेबल देने वाले हैं हमेशा बार्गेन करेंगे और क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कितने में देगा कितने में नहीं देगा. Obviously those discussions will be going on, so the entire environment is chaotic. बराबर. But in the library obviously you are supposed to maintain silence, absolute silence. तो वहां पर the environment would be very much silent. Agreed? एक बहुत ही ज्यादा chaotic है और दूसरा एकदम silent है. ठीक है. अब वहां पर एक बंदा आता है और जोर से चिल्लाने लगता है. अब मुझे बताओ वो बंदा जब चिल्लाएगा जोर से कि चलो बॉम्ब है भागो भागो भागो, तो कहां पर उसका इफेक्ट ज्यादा होगा? वेजिटेबल मार्केट में या लाइब्रेरी में?
लाइब्रेरी में, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा शांति थी, तो ऑब्वियसली जब कोई अचानक से चिल्लाएगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अब वेजिटेबल मार्केट में ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली चल ही रहा है और उसमें कोई बंदा चिल्ला भी रहा है, किसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब द इफेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी लेस। डू यू अग्री विद दैट? Yes, Yes, sir. sir. अब कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी था वो ऑलरेडी काफी गर्म था और 25 डिग्री सेल्सियस पे कंपैरेटिवली लेस हॉटर था। अब अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं तो जो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस है वो ज्यादा इफेक्टिव किस में होगा, 80 डिग्री वाले कंटेनर में कि 25 वाले में? 25. 25 वाले में। हैव यू गॉट दैट? Yes. Yes, sir. Remember this example of vegetable market versus library. ठीक है, a chaotic environment versus a silent environment. A person comes and screams. The effect will be more in the case of library. Meaning, if the container is at the lower temperature and if you're supplying same amount of heat, then obviously the randomness will be effectively higher in the 25 degree Celsius vessel. समझा? Yes, sir. Super. So can I say the entropy ka change will be higher in the substances which are at lower temperature? Yes, sir. The entropy ka change will be higher in the substances at the lower temperature. 25 वाले में entropy का जो change है, effect है, वो ज्यादा होगा। तो lower temperature पे entropy ज्यादा drastically change होता है, delta S की बात कर रहा हूँ। Got it? Yes, sir. Super. So overall ये तीन चीजें ध्यान में रखना कि एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस पार्टिकल्स या मोल्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, हीट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और टेम्परेचर से इनवर्सली डिपेंडेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इज इट अ स्टेट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन? State function. पीवीटी ट्रिपल ई जब मैंने बोला था तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। तो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, इज इट इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? Extensive. एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल से डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली एक्सटेंसिव होना ही है ना। ठीक है, याद रखना, इट्स अ स्टेट फंक्शन एंड इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैंने जो 5 पॉइंटर्स दिए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स अंडरस्टैंड द साइन ऑफ डेल्टा एस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एंट्रोपी को कैसे आपको रिलेट करना है। सो फॉर द फर्स्ट एग्जांपल टेल मी, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. बिकॉज 1 से 2 मोल्स बढ़ रहा है मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव। नेक्स्ट, Zero. क्योंकि सॉलिड्स के लिए तो ऑलरेडी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एज गुड एज उसका एंट्रोपी बहुत ही कम रहता है। अब खाली गैसियस कंपोनेंट्स को आपको केमिकल रिएक्शन में कंपेयर करना है, और इस केस में अगर मैं डेल्टा एनजी की बात करूं, क्या दिख रहा है? Zero. Two. 0। मतलब यहाँ पर मोर और लेस जो डेल्टा एस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। देयर माइट बी सम चेंज बट दैट कैन बी निग्लेक्टेड। अग्रीड? Yes, sir. नेक्स्ट, हेबर्स प्रोसेस। Negative. नेगेटिव, क्योंकि 4 मोल से 2 मोल्स पे आ रहा है। नेक्स्ट, Positive. Positive. अब कोई सॉलिड अगर डिकम्पोज करके कुछ गैस इवॉल्व कर रहा है तो वो गैस मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर्ड वे में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट,
Negative. Negative. गैस से सॉलिड हो रहा है मतलब नेगेटिव. नेक्स्ट, Positive. बिकॉज 1 मोल ऑफ क्लोरीन 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स दे रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगा. So now this gives you a clear idea about how the entropy का sign is to be predicted for the chemical reactions. अब नीचे कुछ प्रोसेसेस दिए हैं, उसमें भी एंट्रोपी को प्रेडिक्ट करना है. So helium gas in a volume of 1 liter versus helium gas in a volume of 5 liter, both at 25 degrees Celsius. कहां पर एंट्रोपी ज्यादा होगी? 5 liter. 5 लीटर, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा फैलेगा तो ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा, मतलब 5 लीटर में ज्यादा एंट्रोपी होगा. नेक्स्ट, ऑक्सीजन गैस एट 1 atm और ऑक्सीजन गैस एट 10 atm, बोथ एट सेम टेम्परेचर. Negative. हाँ, 1 atm. ऑब्वियसली क्योंकि 10 atm पे द गैस विल बी हाईली कॉम्प्रेस्ड. कॉम्प्रेस्ड गैस क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को क्लोजर लाएगा तो डिसऑर्डरनेस घटेगा, तो ज्यादा एंट्रोपी विल बी फॉर द केस ऑफ 1 atm. C2H5OH लिक्विड और गैसियस? ऑब्वियसली Yes. गैसियस. 5 मोल ऑफ नियॉन और 2 मोल्स ऑफ नियॉन? 5. 5. More the moles, more is the entropy. Khatam. So this gives you a clear idea about how to predict the entropy का sign. Larger या smaller कैसे predict करना है, that should be understood. So now next में we come to the various formulas and the relation for entropy. तो डेल्टा एस जब बोलते हैं इट इज इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ द फाइनल माइनस द एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल स्टेट, फाइनल माइनस इनिशियल. और एक और चीज, जनरली हम थर्मोडायनामिक्स में एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिटरमाइन नहीं करते हैं, बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी डिटरमाइंड. कैसे करते हैं वो आगे समझेगा, बट अभी के लिए याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, that is S, can be measured or can be determined. तो मेरे पास S फाइनल और S इनिशियल की वैल्यूज हो सकती है और उसके बाद मैं डेल्टा S को फाइंड आउट कर सकता हूं. ठीक है, ये जो पॉइंटर्स लिखे हैं प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दोस थिंग्स. ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखते जाओ आप अपने नोट्स में, सिनॉप्सिस में. Now, as I said that the delta S entropy change is proportional to the heat directly and inversely proportional to the temperature. So that is why delta S का जो formula बन जाता है, that is through that relation only, Q by T, Q by T. Delta S is Q by T. अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, Q reversible by temperature, reversible. अब ऐसा क्यों लिखा है उसका भी रीजन है. एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो अगर मैं इनिशियल स्टेट ए लूं और फाइनल स्टेट बी लूं, एंड इफ आई गो फ्रॉम ए टू बी इन अ रिवर्सिबल पाथ एंड ए टू बी इन अन इरिवर्सिबल पाथ, विल द एंट्रोपी चेंज? No. Can I say delta S reversible and delta S irreversible will be equal? हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. So since entropy is a state function, whether you go by reversible or by irreversible or by any path, the entropy will always be same. Correct? अब जो irreversible processes होते हैं ना, they are the natural processes which are always spontaneous and takes place on its own. तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर वही irreversible process को reversibly carry out किया, तो उसमें जो heat change है वो अगर measure किया तो it will be Q reversible. For any irreversible or the natural process, if the same process is carried out in a reversible manner, then उसका जो heat है वो अगर हम मेजर करते हैं
तो उसको क्यू रिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज जो प्रोसेसेस इरिवर्सिबल है वो तो अपने आप से हो ही रहे हैं, अगर वही प्रोसेस को हम रिवर्सिबली करते हैं तो उसमें हीट कंटेंट क्या है या क्यू क्या है वो यहाँ पर मेजर किया जाता है एज पर कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एस को मेजर किया जाता है एज द रेशियो ऑफ क्यू रिवर्सिबल अपॉन द टेम्परेचर। इसका न्यूमेरिकल्स में और थोड़ा डिटेलिंग आएगा, तब आई विल डिस्कस। फाइन। Yes, sir. Now look at this two very important statements. सबसे पहले ऊपर, the total entropy change of an isolated system is equal to entropy change of system and entropy change of surroundings. जब मैं यूनिवर्स बोलता हूं तो यूनिवर्स बना हुआ है क्या, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से, तो the sum of this is called entropy change of universe. तो जब भी हम टोटल एंट्रोपी की बात करते हैं, it is the entropy of the universe. It's equal to the system plus surrounding. अब लॉजिकली मुझे बताओ, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, is it a natural process or a process which is carried out with some external agency? अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबली कैरी आउट करते हैं तो क्या वो अपने आप से होता है या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगता है उसको करवाने के लिए? External agent is required. एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड, बराबर। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो हमेशा खुद ब खुद होते हैं, स्पॉन्टेनियसली होते हैं, ठीक है। और एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स always goes on increasing and always tries to reach its maximum value, but the energy is always conserved. एनर्जी कांस्टेंट है यूनिवर्स का, लेकिन एंट्रोपी बढ़ते जाता है, बराबर। Yes, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना, उसमें एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज 0 बिकॉज वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। उस केस में सिस्टम का जो एंट्रोपी है वही सराउंडिंग का एंट्रोपी होता है, बट ऑपोजिट इन नेचर। तो अगर सिस्टम का और सराउंडिंग का एंट्रोपी इक्वल एंड ऑपोजिट है तो उसका सम जो है दैट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 0। रिमेंबर, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज 0, बट फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी लिसन टू दैट, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस मींस देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is spontaneous change. In fact, this is actually one more statement of second law of thermodynamics. समझा? yes, sir. Good. Now, entropy for equilibrium processes at a constant temperature could be defined with their heats at the constant pressure and the constant temperature. Now, जैसे fusion is an equilibrium process, vaporization, sublimation, ये सारे equilibrium processes हैं. Do you agree? Yes, sir. और ये जो Q है वो constant pressure पे अगर define किया तो QP हो जाता है. Can you tell me what is QP actually equal to thermodynamically? Delta H. दो चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, QP मतलब डेल्टा H और QV मतलब डेल्टा U। QP मतलब डेल्टा H, QV मतलब डेल्टा U, and these are the heats at the constant pressure and constant volume, ठीक है। इसीलिए कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस में जब QP डिफाइन होगा वो डेल्टा H के बराबर होगा, यानी एंट्रोपी फॉर एनी फ्यूजन is equal to the enthalpy of fusion divided by the fusion temperature, right, which for ice will be 273 Kelvin,
वेपराइजेशन के लिए delta H of vaporization upon the T vaporization, which will be 373 Kelvin. Yes or no? Yes, sir. And sublimation के लिए it will be delta H of sublimation upon the temperature of sublimation. मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस के लिए अगर एंट्रोपीज फाइंड आउट करना है तो इट्स अ रेशियो ऑफ एंथैल्पीज बाय टेम्परेचर. गॉट इट? Yes, sir. Super. Now in general there is a formula of delta S system which is given as NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, which is also equal to NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2. तो बेसिकली यहाँ पर CV को अगर CP माइनस CV वाला रिलेशन से रिप्लेस कर दो तो आपको यहाँ पर CV के बदले में CP का रिलेशन आ जाएगा. पहले तो ये फॉर्मूला रट लो, मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊंगा जो सिलेबस में नहीं है. सिलेबस में नहीं है फिर भी शॉर्ट डेरिवेशन है, मैं आपको बता दूंगा कैसे ये आता है. But first of all, just mug up this formula. Everyone, delta S of the system is generally given as NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. उसी को अगर आप CP माइनस CV के थ्रू रिप्लेस कर दोगे, मतलब CV को CP माइनस R में रिप्लेस कर दोगे ना, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln इसकी जगह P1 by P2 आ जाएगा. वो आप डिराइव कर सकते हो. आई एम नॉट गोइंग इनटू दोस डिटेल्स, बट ये वाला जो बेसिक फॉर्मूला है ये आया कैसे? नाउ व्हेन आई से डेल्टा S ऑफ सिस्टम, वी हैड डिफाइंड इट एज Q by T, Q रिवर्सिबल by T, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो यहां से अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रिलेट करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाज गिवन एज डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. यस और नो? Yes, sir. सो इसको अगर स्मॉल चेंज के लिए लिखूं तो आई कैन राइट DU इक्वल टू Q प्लस DW. And this can again be written as Q minus P external delta V. Sorry, rather DV लिखते हैं, चलेगा क्या? Yes, sir. Now ये जो heat है for the delta S, it needs to be the heat in the reversible manner. अब कोई भी reversible process के लिए there is always an equilibrium established between the system and surrounding at every step. Reversible process takes place in infinite number of steps and at every step the system is in equilibrium with the surroundings. हाँ कि नहीं? Yes, sir. मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है पिस्टन के थ्रू अप्लाई किया हुआ और जो अंदर का प्रेशर है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेम रहेगा. मतलब कैन आई रिप्लेस द P एक्सटर्नल बाय द P ऑफ द गैस? अगर मैं Q रिवर्सिबल लिख दूं यहाँ पर तो क्या मैं यहाँ पर PdV लिख सकता हूँ? Yes, sir. Since for reversible process P external will be equal to P of the gas, जिसको हम P लिखते हैं कन्वेंशन से, राइट? बोलते जाओ हाँ कि नहीं? Yes. तो यहां से Q रिवर्सिबल क्या हो जाता है? DU प्लस PdV. और अगर मैं इसको T से डिवाइड कर लूं, T से डिवाइड कर लूं, T से डिवाइड कर लूं तो ये मेरा डेल्टा S सिस्टम हो जाता है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो. Yes. Yes, sir. ओके. नाउ मुझे बताओ DU जो होता है that is actually equal to QV and QV in turn is given as N CV DT. था कि नहीं फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. और हीट कैपेसिटी तो पढ़ा हुआ है, सो आई एक्सपेक्ट दिस फॉर्मूला टू बी अंडरस्टूड एंड रिमेंबर्ड. तो यहाँ पर डेल्टा S ऑफ द सिस्टम कैन बी नाउ रिटन एज NCV DT by T.
प्लस ये जो P है ये प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस है। अगर आइडियल गैस है मतलब PV इक्वल टू nRT ले सकता हूं, तो P बाई टी को मैं लिख सकता हूं एज NR बाई V, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, ये sir. हो जाएगा NR dV बाई V, ये डेल्टा नहीं डी लेते हैं। अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 से T2 और यहाँ पर वॉल्यूम V1 से V2। डू यू गेट द फॉर्मूला विच इज रिटन ओवर हियर? Delta S of the Yes, sir. system is given as NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। ये आपको फिजिक्स में काफी काम आने वाला है, इसलिए मैंने डेरिवेशन भी आपको बता दिया। छोटा सा ही डेरिवेशन है, लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में अपने बुक में लिख सकते हो इफ यू विश। एल्स अपने थर्मोडायनामिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अब इंपॉर्टेंट है। फाइन, रट लो फॉर्मूला NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V1। और अगर CP के फॉर्म में लिखना है तो खाली यहाँ पर V2 by V1 जो है वो P1 by P2 हो जाएगा बस। ठीक है, बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब आगे का पार्ट फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को अलग अलग प्रोसेसेस के लिए डिफाइन करने वाले हैं और वही आपका मेन पार्ट है न्यूमेरिकल्स का और MCQs का। Let's see. So entropy calculation for various processes. सबसे पहला है isothermal process. Now for an isothermal process, T1 is equal to T2. मतलब in this formula the first term goes away. बचा क्या? बचा क्या? NR ln V2 by V1. आ गया फॉर्मूला। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम का NR ln V2 by V1 और सराउंडिंग का नेगेटिव होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी माइनस NR ln V2 by V1 and thereby giving you the delta S of the universe equal to 0 for a reversible process। हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब ध्यान देना, if the process is irreversible, system का entropy is given in the same manner NR ln V2 by V1, but surrounding के लिए it's given as minus P external by T, minus P external delta V by T सराउंडिंग का। ठीक है, इट्स एक्चुअली इक्वल टू द वर्क डन अपॉन द टेम्परेचर। तो जो वर्क डन है वो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर होता है। एंड सराउंडिंग्स का और सिस्टम का जब आप एड अप करोगे तो वो डेल्टा S टोटल हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड दिस इज एज पर द फैक्ट व्हिच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, total entropy should always go on increasing. Again, this is related to the second law of thermodynamics. Slot. समझा? Yes, sir. तो न्यूमेरिकल्स में जस्ट रीड द वर्ड केयरफुली। रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल क्या दिया है उसके बेसिस पे यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूलाज। एंड अगर कोई MCQ में बोला है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का एंट्रोपी क्या होता है, सिस्टम का पूछा तो फॉर्मूला लगाओ, सराउंडिंग का पूछा फॉर्मूला लगाओ, टोटल एंट्रोपी पूछा तो सीधा आंसर क्या है? 0। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने रीड कर लिया कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल और टोटल एंट्रोपी पूछा है तो आंसर सीधा सीधा 0 है। आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, रिमेंबर दिस। फाइन। Yes, sir. डायबिटिक प्रोसेस, ना डायबिटिक प्रोसेस में डेल्टा S सिस्टम होता है Q बाई T, बट ए डायबिटिक के लिए Q क्या होता है? 0. तो अगर Q 0 है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी 0, सराउंडिंग का भी 0, टोटल भी 0। मतलब अगर रिवर्सिबल ए डायबिटिक का क्वेश्चन आया,
सुन लो ध्यान से, रिवर्सिबल ए डायबिटिक का क्वेश्चन आया, उसमें एंट्रोपी पूछा, सिस्टम हो, सराउंडिंग हो, टोटल हो, 0 0 0। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। एंड ये कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर सकते हो विद दैट इंसुलेटेड फ्लास्क एग्जांपल। सब कुछ जीरो था, एनर्जी कंटेंट जीरो था, लेकिन एंट्रोपी फिर भी पॉजिटिव। पॉजिटिव था। बिकॉज कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉलो करता है तो उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। याद रखना, इरिवर्सिबल मतलब नेचुरल और स्पॉन्टेनियस, ये तीनों वर्ड इंटरचेंजेबली एमसीक्यू में घुमाएंगे। इरिवर्सिबल बोलो, नेचुरल बोलो, स्पॉन्टेनियस बोलो, सब कुछ एक ही है, संता बनता टाइप। बट फॉर इरिवर्सिबल सराउंडिंग का एंट्रोपी 0 होगा, लेकिन टोटल एंट्रोपी तो हमेशा पॉजिटिव होगा। बॉटम लाइन ये है, अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल है तो यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस नहीं होते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स will always be going on increasing as per second law of thermodynamics. Once again, it is as per slot. And isochoric process. Now, isochoric process में going back, V1 और V2 इक्वल हो जाएगा, ये टर्म उड़ जाएगा, बचा क्या, NCV ln T2 by T1। एक फॉर्मूला आ गया, सुनो। एक भी फॉर्मूला रटना नहीं है, जो जनरल फॉर्मूला दिया था वो आपका मेन फॉर्मूला है, बाद में जो भी प्रोसेस है उसके लिए आप अप्लाई कर लो। अच्छा, NCV ln T2 by T1 is also equal to NCV ln P2 by P1, because isochoric में when the volume is constant, the temperature and pressure are what? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ना, गेलो-साक्स लॉ। यस सर। और आइसोबारिक में, अब बारिक है मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है मतलब हम सीपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सीपी वाले फॉर्मूला में जो P1 by P2 वाला टर्म है वो उड़ जाएगा, तो बचा क्या, NCP ln T2 by T1। और कांस्टेंट प्रेशर जब होता है तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है, इसलिए T2 by T1 की जगह V2 by V1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, नोट्स में ना देयर इज वन करेक्शन ओवर हियर, वो CP होना चाहिए, CV दिया है आई थिंक, जस्ट चेक दिस। आइसोबारिक फोर्थ वन क्या दिया है, CV है ना, Yes, sir. उसको CP करो, करेक्शन है वो। गौतम किया क्या, किधर देख रहे हैं, बुक ओपन रखो। हाँ I wrote it in my rough book. I'll do it later. हाँ, बट याद रखना वो करेक्शन कर लेना। Yes, sir. So overall now 4 processes के लिए we have defined the entropy। अब MCQs के ऊपर चलते हैं, and if you have understood today's concept, the MCQ should be simple. Let's start. Second question, predict which of the following reaction has a positive entropy change। पहला रिएक्शन क्या बोलोगे, No. बिकॉज आयंस डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होता है और सॉलिड ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, तो इस केस में एंट्रोपी क्या हुई, Decrease. डिक्रीज। नेक्स्ट, Increase. ऑब्वियसली सॉलिड से 2 गैसियस मोल्स आ रहा है तो एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। नेक्स्ट, Positive. 2 से 4 हुए तो पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव सेकेंड एंड थर्ड में। नेक्स्ट, which of the following reaction is associated with a negative change in entropy। फर्स्ट वाला क्या बोलोगे, Positive. पॉजिटिव, 2 से 3 मोल्स हो रहा है। नेक्स्ट,
1 से 2 हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एरो होना चाहिए। यहाँ पर भी 1 से 2 गैसियस मोल्स हो रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 gaseous moles are converting to the liquid, and obviously the disorderedness would be decreased and the entropy will be negative. Option 4. समझा? Yes, sir. तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जहां पे सिर्फ एंट्रोपी का साइन प्रेडिक्ट करना है। नेक्स्ट, द गैस फेज डिकम्पोजिशन, व्हाट इज डेल्टा H एंड डेल्टा S? ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। both are positive. Both are positive. Endothermic and entropy increased. Which of the following statement is true? The entropy of the universe. Increases and tends toward maximum value. First one, increases and tends towards its maximum value, and this is again the second law of thermodynamics ka statement. Now comes the important part. When 2 moles of an ideal gas with Cp given as 5/2 R is heated from 300 to 600 Kelvin at constant pressure, the change in entropy of gas is. बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करो? NCPLN T2/T1. सुपर। बिकॉज सबसे पहले तो देखो कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब प्रोसेस कैसा है? Isobaric. आइसोबारिक। आपसे पूछा है एंट्रोपी ऑफ गैस, मतलब सिर्फ सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सराउंडिंग को भी आइसोथर्मल और एडायाबेटिक में रिलेट किया, बट बाकी दोनों के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर द डेल्टा S ऑफ द गैस फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस इज गिवन एज NRLN NCPLN T2/T1। तो मोल्स है 2, Cp है 5/2 R, ln ऑफ 2 आ जाएगा 600/300, 2 कैंसल, आंसर है 5 R ln 2। खत्म। If you know the formulas, if you know the concept, these questions are very simple. आगे, the entropy change when 2 moles of an ideal monoatomic gas is heated from 200 to 300 degrees Celsius reversibly and isochorically. Yes. NCVLN T2/T1. NCV ln of T2/T1. N आपका 2 मोल्स है। नाउ CV तो दिया नहीं है, कैसे ढूंढेंगे? 3/2. 3/2 R. Don't forget R, हाँ? तो मोनो एटॉमिक गैस है, Cp 5/2 R होता है और Cv 3/2 R होता है, इसलिए गामा 5/3 1.66 आता है। ठीक है, तो Cv इसके लिए 3/2 R है और ln आपका 573/473 होगा। 2 कैंसिल, 3 R ln का रेशियो। आंसर इज ऑप्शन 3। खत्म। है कि नहीं इजी? Yes, sir. Next, if 1 mole of an ideal gas with Cp given is expanded isothermally at 300 Kelvin until its volume is tripled, then change in entropy of gas is. Isothermally. पहला टर्म उड़ जाएगा ना? NR ln of, रट लो फॉर्मूला, रट लो, बहुत काम आने वाला है। NR ln V2/V1, 1 मोल इंटू R इंटू ln, वॉल्यूम ट्रिपल किया गया है तो R ln 3। खत्म, ओरली आंसर आता है। आगे, 1 mole of a diatomic ideal gas at 25 degrees Celsius is subjected to expand reversibly and adiabatically. Should I read ahead? No. 0.
reversibly and adiabatically to 10 times of its initial volume. Calculate the change in entropy. Reversible adiabatic में entropy का change हमेशा 0 आता है. मैंने क्या बोला था, बहुत सारा डेटा दिया जाएगा, लेकिन अगर adiabatic रिवर्सिबल है मतलब डेल्टा एस सिस्टम बोलो, सराउंडिंग बोलो, यूनिवर्स बोलो, सब कुछ 0 हो जाएगा. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Next, when 2 mole of an ideal gas Cp given is expanded adiabatically and reversibly from 1 liter to 8 liter at what? Let's say 300 Kelvin. The change in entropy of the universe is क्या? 0. भाई रिवर्सिबल में यूनिवर्स का एंट्रोपी चाहे आइसोथर्मल हो, एडायबेटिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, रिमेंबर द डेल्टा एस इज 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सोचना ही नहीं है. रिवर्सिबल में अगर टोटल एंट्रोपी पूछा, चाहे आइसोथर्मल हो, एडायबेटिक हो, इट्स इक्वल टू 0. गॉट इट? Yes. कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन जूल पर मोल केल्विन. हाँ, और एक चीज, एंट्रोपी का यूनिट क्या है? इट्स गिवन एज Q रिवर्सिबल बाय T, सो इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन. और अगर एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं तो जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, either ways whatever you write. So that's how the unit is joule per mole Kelvin. ठीक है? To calculate the entropy change of the given reaction, the molar entropies are given in brackets after each substance. Molar entropies दिया है. अब रिएक्शन में जब हम डेल्टा S बोलते हैं तो it's equal to the summation entropy of the Products minus reactants. products minus sum of the entropy of the reactants. तो अब यहाँ पर समेशन लेते हैं, मतलब सब प्रोडक्ट्स का एंट्रोपीज, एंड आई सेड दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी कैन बी डिटरमाइंड. ये जो है वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है. हम जो फाइंड कर रहे हैं वो चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर रहे हैं. समझता है ये? Yes, sir. So now the calculation will be 2 moles into 66.5 plus 2 moles into 248.2 minus 2 moles into 91.2 plus 3 moles into 205.1. कैलकुलेशन करो, जो भी आंसर है वो आ जाएगा आपका जूल पर मोल केल्विन में. पर मोल निकल जाएगा, सॉरी, जूल पर केल्विन में फॉर अ रिएक्शन, है ना? समझा? Yes, sir. Next, the change in entropy for the fusion of 1 mole of ice is, melting point of ice is 273 Kelvin. Molar enthalpy of fusion for ice is 6 kilojoule per mole. Entropy of fusion क्या होगा? कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? डेल्टा H by T fusion. डेल्टा H फ्यूजन का अपॉन T ऑफ द फ्यूजन. इक्विलिब्रियम प्रोसेस में QP डेल्टा H के बराबर होता है. तो यहाँ पर सिंपली 6000 जूल्स डिवाइड कर लो 273 केल्विन से. ठीक है, ये पर मोल है. तो फाइनली यहाँ पर आपका आंसर आएगा 21.97 जूल पर केल्विन पर मोल. Understood? Yes, sir. So with this the section E is completed, and along with that entropy का जो concept है that also is discussed. So आज के पूरे सेशन का एक conclusion ये है कि spontaneity of any process was first understood by taking the delta H as the parameter. मतलब बहुत सालों तक डेल्टा H के थ्रू स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड किया जा रहा था.
लेकिन रिसर्च के बाद ये पता चला कि एंथैल्पी अकेला एक पैरामीटर नहीं हो सकता स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसके साथ एंट्रोपी को लाया गया। एंड एंट्रोपी और जो एंथैल्पी है वो अलग है। एंथैल्पी एनर्जी के बारे में बात करता है, एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस के बारे में बात करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जहां पे एनर्जी चेंज नहीं होता है, फिर भी एंट्रोपी हमेशा बढ़ते जाता है। दैट्स व्हाट इज द रिलेशन टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। So now when I combine the enthalpy and entropy together, I get one more thermodynamic parameter, and that's called Gibbs free energy. Free energy या Gibbs free energy. तो basically spontaneity को अब पूरे थर्मोडायनामिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे स्टार्ट में we had talked about the application. Thermodynamics for chemistry is useful to understand the feasibility of the reaction. तो मैंने आपको बोला था कोई केमिकल प्लांट आपको डालना है तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन आप करवाने वाले हो तो उसको पहले टेस्ट करोगे ना कि ए और बी मिलाने से सी बनता है कि नहीं बनता है, क्या ये रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं। फिर आप चेक करोगे एक्सटेंट कितना है, उसके लिए इक्विलिब्रियम लगेगा। फिर आप ऑल्सो चेक करोगे इसका स्पीड कैसा है, काइनेटिक्स क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स लगाओगे। तो किसी भी रिएक्शन में 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड whether you will use that particular reaction for your chemical production or not, right? Bolo. Yes, sir. So spontaneity is now described by 2 processes. One is enthalpy and other is entropy, and in दोनों को relate करने वाला है Gibbs free energy, and the relation is delta H minus T into delta S is Gibbs free energy. Delta G is equal to delta H minus T delta S. अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ये मैं स्टार्ट में आपको एक थोड़ा सा हिंट दे चुका हूं। इट्स द मैक्सिमम यूजफुल वर्क विच इज डन बाय अ सिस्टम। मतलब हमने 100 जूल की एनर्जी कोई सिस्टम में दी तो पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट होता है क्या? Can 100% heat be converted into 100% work? No. No, that violates the second law of thermodynamics, जो बोलता है कि no machine has ever been made जिसकी efficiency 100% हो। मतलब 100 जूल में से 40 जूल लॉसेस में गया तो आपका जो यूजफुल वर्क है वो सिर्फ 60 जूल के बराबर होगा। यू अग्री? Yes, sir. sir. तो वही 60 जूल जो है वो यूजफुल वर्क जो है वही गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर है। ठीक है, हमारे बॉडी में भी वी हैव एनर्जी which is obtained by consuming food, बट कुछ काम करने के टाइम पे हम पूरा का पूरा एनर्जी नहीं यूज कर सकते। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बिकम लेथार्जिक, विल बिकम लेजी, तो वापस अपने को फूड कंज्यूम करना पड़ेगा, एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, फिर यू कैन डू दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क, बराबर। और कुछ एनर्जी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है उसको भी कंडक्ट करने के लिए यूज अप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जितना फूड हम खाते हैं उतनी एनर्जी हमें वर्क के फॉर्म में नहीं मिलती है, राइट? Yes, sir. तो अपना बॉडी भी तो एक सिस्टम ही है ना, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। गिव्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है एंड इट्स अ मेजर ऑफ मैक्सिमम और द यूजफुल वर्क डन फ्रॉम अ रिवर्सिबल रिएक्शन at constant temperature and pressure, done from a reversible reaction at constant temperature and pressure. When we use the word maximum, we are talking about the process carried out in a reversible manner. तो किसी भी reversible reaction में maximum useful work जो आता है वो अपना Gibbs energy के बराबर होता है। समझा? Yes, sir. मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये अपना एक सिस्टम है, मशीन है, इसमें मैंने डेल्टा एच का एनर्जी दिया जो मेरा इनपुट है, इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलेगा? मैंने डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया तो आउटपुट में कितना
एनर्जी मिलेगा। less than delta H. हाँ, बट कितना? नाउ हैव वी डिफाइंड दैट? Delta G. हाँ, अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, डेल्टा एच इनपुट है तो आउटपुट में डेल्टा जी मिलेगा। और अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो हाउ वुड यू कैलकुलेट? Delta G by delta H. तो आ गया ना एक सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा जी बाई डेल्टा एच इंटू 100। समझा क्या? Yes, sure. ठीक है, तो ये मैंने नोट्स में शायद नहीं दिया है, ये आप लिख लो, जहां पर एनर्जी चेंज के रिलेटेड डेफिनेशन दिया है, जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट। ओके। और कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी था, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीट सोर्स एंड द हीट सिंक। So it was T2 minus T1 upon T2 into 100. That was the percentage efficiency for an heat engine by Carnot cycle, जो आपको फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंटली यूज होने वाला है। ठीक है, चलो, डन फॉर टुडे। So I have just given the introduction to the next topic. So in the next session, we will continue from here, where we talk about the Gibbs energy and its relation with spontaneity. तो स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एच और डेल्टा एस के थ्रू डिफाइन होने वाला है, बट क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या अलग वेज है जहां पर स्पॉन्टेनियस हो सकता है, दैट इज द नेक्स्ट सेशन। फाइन, Yes, sir. Yes. चलो।